السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ریڈ ہلز نمائندہ کارپوریٹر عارف رضوان نے شاہی مسجد پبلک گارڈن کا دورہ کرتے ہوئے رمضان کے انتظامات کو دیکھا، جو کل سے چاند نظر آنے کے بعد سے شروع ہونے والے ہیں۔ اس موقع پر ٹی ایس ایم ایف سی کے ضلع اقلیتی افسران الیاس احمد، مسجد کمیٹی کے اراکین و دیگر موجود تھے۔ کیا کریں گے بولتے بولے اب وہ جلدی تو صاف ہی ہوئی نا، صاف ہو گئی، فائلنگ کرا دی یہاں پر ہی۔ یہ ہے اصل مسئلہ، نہیں ایسے گیٹ ویٹ لگانے لگا دی بعد میں یہ اٹھانا ہے نا۔ ایک مجھے دے دو، یہاں سے آئے بھی تو دیکھا آپ کو یہ حال لگا دیں گے آگے وہاں گیٹ دوسری طرح بڑی گیٹ لگا دیے تو ہاں وہ کام کر دیں گے۔ చెప్పండి మళ్ళీ అయితే నేను చంపేస్తా, బండి ఖరాబ్ అయింది, అది ఖరాబ్ అయిందని చెప్తాను। ఇప్పుడు ఫోన్ తీసుకుని చెప్తాను। लेडीज का पूरा हो गया बोला मैं तमाशा हो जाता हूँ आज से शुरू है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं नहीं का तो हम तो तैयारी आज से हो गई है ना 99% शुरू हो गया। पहले कितना डाल देते हैं, इसका भी डाल थोड़ी, इसका खुला छोड़ नहीं, इधर भी डालना था। मैडम और चला दो कहीं को खराब दिख रहा है। مدرسہ تو تقوی لیل تحفیظ القرآن آئی ایس کالونی ٹولی چوکی میں اپنی حفظ گریجویشن کی تقریب مسجد تقوی اہل حدیث میں منائی گئی۔ طالب علموں نے مختلف 22 مقابلہ جات میں ایوارڈ حاصل کیے۔ 3 طلبہ حافظ بن کر قرآن شریف مکمل کر کے حافظ بنے ہیں۔ اس موقع پر امیر جمعیت اہل حدیث صدر حافظ و سیکرٹری شیخ شفیق عالم جامع حفظ اللہ، شیخ سلیمان الوداد حفظ اللہ ریاض سعودی عرب اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ جلسے سے شیخ امتیاز عالم جامع حفظ اللہ نے خطاب بھی کیا۔ شیخ سمیع اللہ مدنی حفظ اللہ امام و خطیب مسجد تقوی نے تقریب کی نظامت کی۔ الحمدللہ اس بات سے خوشی ہوئی کہ طلباء نے بہت اچھا مظاہرہ پیش کیا اور مدرسے کے ذمہ داران اور مدرسے کے اساتذہ ان طلباء کے پیچھے بہت زیادہ محنت کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داران کو، اساتذہ کو اور طلباء کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا میں مسلمان کئی طرح کے مسائل سے دوچار ہیں، کئی طرح کے مسائل سے، بلکہ خود ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو اپنی پہچان باقی رکھنا یہ بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ مستقبل آنے والا دور ایسا آنے والا ہے کہ ایسی سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے اور اس طرح انہیں گھیرا جا رہا ہے کہ ان کی شناخت مشکل ہو جائے۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ و نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کا ہر پہلو اس میں ہمارے لیے درس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں
جب حالات انتہائی مشکل تھے، مسلمان انتہائی پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے دوچار تھے، ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم پر توجہ دی۔ سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل کی جانب سے گلوکوما ڈے کے موقع پر ایک شعور بیداری ریلی نکالی گئی تھی اور اسپتال کے احاطے میں بھی ڈاکٹر اور اسپتال کے سٹاف کی جانب سے گلوکوما ڈے منایا گیا۔ اس دوران نامپلی کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا۔ بعد ازاں اسپتال کے ذمہ داران نے اس ضمن میں مزید تفصیلات سے بھی واقف کروایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج ریاستی سطح پر سروجنی دیوی ہاسپٹل میں آج عالمی طور پر ورلڈ لیول پر گلوکوما ویک کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ یہاں پر سپرنٹینڈنٹ صاحب اور پورے ان کا اسٹاف اور ہمارے MLC صاحب اور سارے کے سارے لوگ یہاں پر ہے۔ یہ پروگرام کا منعقد کرنے کا مقصد اور منشا یہی ہے کہ ایک عوام میں ایک تحریک لائے، عوام میں ایک یہ سوچ لائے کہ اس بیماری کو لے کر کس طریقے سے حفاظتی اقدامات کرے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آن ٹائم ہمارے یہاں کے موجودہ رکن اسمبلی جناب محمد ماجد حسین صاحب بھی یہاں پر تھے، لیکن ان کو اور بھی کئی دوسرے پروگرامز کی وجہ سے وہ ابھی دوسرے پروگرامز میں گئے ہوئے ہیں۔ منسٹر صاحب بھی آنے کا وعدہ کیے تھے، لیکن کسی وجوہات کی بنا پر وہ بھی نہیں آ سکے۔ لیکن الحمدللہ ایک یہاں پر ایک بڑے پیمانے پر یہ پروگرام منعقد کرتے ہوئے نہ صرف حلقہ نامپلی کے عوام کو بلکہ ریاست تلنگانہ کی عوام کو یہاں سے ایک اچھا میسیج دینے کی یہاں پر سپرنٹینڈنٹ صاحب ہو یا پوری میڈیکل ٹیم ہو، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بیماری کس طریقے سے اس سے بچاؤ، اس سے کس طریقے سے احتیاط کر سکیں۔ جیسا کہ میڈم جی نے بھی ڈیٹیل میں بتایا، MLC صاحب نے ڈیٹیل میں بتایا، انشاءاللہ سپرنٹینڈنٹ صاحب بھی اس بیماری کو لے کر عوام میں کیا اقدامات کر سکتے ہیں، کس طریقے سے احتیاط اور پریکاشنز لینے کی بات انشاءاللہ ڈیٹیل میں کہی جائیں گی۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ نہ صرف حلقہ نامپلی بلکہ ریاست کے تمام عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اقدامات لیتے ہوئے آپ احتیاط سے کام لیں، کیونکہ زندگی میں آنکھ کا بہت اہم رول ہوتا۔ اگر کسی معذور انسان کو اگر آنکھ کی اہمیت پوچھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ آنکھ کتنی اہمیت ہے۔ آنکھ ہے تو ہم دنیا دیکھ سکتے ہیں، آنکھ ہے تو تمام خوشیاں زندگی کے تمام چیزوں کو ہم نظارہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں، آپ تمام لوگ احتیاط سے کام لیں اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو صحت مند رکھیں۔ السلام علیکم۔ Warm welcome today for this glaucoma week. మినిస్టర్ గారు మన దామోదర రాజనరసింహ గారు రావాల్సింది, ఆయన మెసేజ్ పంపించారు. ఆ మెసేజ్ తోటి మనకి ఆయన హెల్త్ కేర్ అంటే ఆయనకున్న కమిట్మెంట్, డెడికేషన్ మనకి తెలంగాణ స్టేట్లో ఆయన హెల్త్ కేర్కి ఉన్న డెడికేషన్ చెప్తారు. And this glaucoma program, the glaucoma week, is shedding light on the awareness of this thief. It's like the thief which steals our eyesight, one of the leading causes of blindness. And this walk which we are doing today is going to put an awareness not only on our loved ones but also on the community and all those who are suffering with glaucoma who need support. So let us all walk together for the future to reduce the threat of glaucoma, which is the leading cause of blindness in the country. Thank you. Good morning. It's heartening to be here on this Glaucoma Free World Day that is being celebrated, Glaucoma Free India Day, which is being celebrated in the premises of Sarojini Devi Eye Hospital. It's all to bring awareness among the population to find out the ways and means to prevent the occurrence of glaucoma. We will all hope that all the people here gathered here and the people in the community make use of such a facility. Thank you. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی جوڑے نے یدادری لکشمی نرسمہا سوامی مندر کا دورہ کیا اور وزیر اعلیٰ کے ساتھی وزراء کو ریشمی کپڑے اور مورتی پیش کی گئی۔
मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मजलिसी पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में गुलगुंडा मंडल के इस्तेफादा कुनिंदगान में 77 शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस तकसीम के दौरान एमएलए के साथ मजलिसी पार्टी के कॉरपोरेटर और मजलिसी प्राइमरी यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुन मौजूद थे। सदर मोहतरम जनाब नफ़ी मिलत बैरिस्टर साहब की हिदायत पर हल्क़े कारवान को गुलगुंडा मंडल के शादी मुबारक के 77 चक को दिया गया दारुसलाम पर। इंशाअल्लाह करीब में शेख वैद और आसिफ नगर मंडल के भी कुछ चक हैं शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी, वो चक को भी इंशाअल्लाह 2-4 दिन के अंदर किया जाएगा। मैं इस मीडिया के जरिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे या मुझको या मेरी जमात के सदर मतबदी या कॉर्पोरेटर को बताइए, इंशाअल्लाह आपके मसाइल को करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और आज के प्रोग्राम के अंदर गुलगुंडा मंडल के हमारे साहब के तमाम सबॉर्डिनेट और जनाब अजीम साहब, जनाब अमीरुद्दीन साहब, जनाब नसीर साहब कॉर्पोरेटर और दीगर मजलिस के सदर मतबदी की वर्कर आज के प्रोग्राम में शामिल हैं। शुक्रिया। रियासती वजीर बराए तिब्बी सेहत, खानदानी बहबूद और साइंस व टेक्नोलॉजी सी दामोदर राज नरसिम्हा ने रियासत के तिब्बी सेहत और खानदानी बहबूद के महकमे के ज़ेर एहतमाम न्यू बोयागुड़ा सिकंदराबाद में नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया, जिसकी लागत 50 लाख रुपए है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कायम तमाम शोबों का मुआयना किया गया। रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने इस मौके पर खिताब भी किया। वजीर ने इंकशाफ किया है कि मिडवाइफरी के तरबियत याफ्ता एहलकार 83% जचगी और नौज़ायदा अमवात को कम करने के लिए काम करेंगे। सफा बैतुल मॉल रिलीजियस एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आदिलाबाद में मुस्तहिक रोजेदार खानदानों के लिए रमजान राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस दौरान कसीर तादाद में गरीबों में राशन किट्स तकसीम किए गए। बादजा जिम्मेदारान ने इस इजलास से भी खिताब किया और इस ज़िमन में तफसीलात बताई। माशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक की आमद से एक दिन पहले सफा बैतुल माल शाख आदिलाबाद अपने गुज़िश्ता 14 साल की हज़ब रिवायत और अपने मामूल के मुताबिक शहर आदिलाबाद के मुख्तलिफ महल्लाजात से ताल्लुक़ रखने वाले माज़ूरीन, बेवा और मुस्तहिक़ीन में रमज़ान राशन तकसीम करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 11 मार्च 2024 बरोज़ पीर आज सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद की जानिब से शहर आदिलाबाद के मुख्तलिफ महलों से ताल्लुक़ रखने वालों के दरमियान रमज़ान राशन तकसीम किया जा रहा है। ये रमज़ान राशन तकसीम करने का मंसूबा ये है और इसका मकसद ये है कि हमारे शहर की वो गरीब बेवा माज़ूरीन मुस्तहिक़ीन जो कि ज़रूरतमंद तो है लेकिन अपनी खुददारी की वजह से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी के दर पर जाकर दस्तक नहीं देते और रमज़ान जैसा मुबारक और मुक़द्दस महीने में उनकी इबादत व इताअत में कोई खलल ना पड़े, कोई डिस्टर्ब ना आए और वो एक सू होकर अल्लाह ताला के घर में अपने घर में रहकर अल्लाह की इबादत करे, रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम करे और नमाज तरावियों का एहतमाम करे। इसके लिए ये रमज़ानुल मुबारक में एक दिन पहले रमज़ान राशन तकसीम किया जाता है। अवाम में और इनाम में सफ़ा बैतुल माल की पूरी टीम और पूरे कारकुनान शामिल और शरीक रहे। अल्लाह ताला सफ़ा बैतुल माल की इस खिदमत को और उनकी इस हमदर्दी को और वसी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हौसला और हिम्मत अता फरमाए और उम्र में बरकत अता फरमाए, बेहतरीन बदला अता फरमाए और आप तमाम को भी और हमें से को अल्लाह ताला हिम्मत के साथ रोज़ा रखने और तरावीह अदा करने की तौफीक और हिम्मत अता। ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अवामी शिकायत के जल्द अज जल्द हल पर खुसूसी तवज्जो दें। शहर की डिप्टी मेयर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी ने जीएचएमसी हेडक्वार्टर में मुनक़दा अवामी खिताब के प्रोग्राम में लोगों से दरख्वास्तें वसूल की। ब्रजवानी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने डिप्टी मेयर के सामने अपने मसाइल दरियाफ्त किए और अर्ज़दाश्तें भी पेश की। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने कहा है कि शहर के लोगों के मसाइल के हल के लिए
हेड ऑफिस, जोनल और सर्कल ऑफिस में प्रजवानी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है और उन्होंने अहदेदारों को हिदायत जारी की कि वो मौसूल होने वाली तमाम दरख्वास्तों को 1 हफ्ते के अंदर हल करें। डॉक्टर शशांक गोयल इंस्टीट्यूट के IASDG और हुकूमत के EOSP LCSTSN ने LSS के लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। डॉक्टर शशांक गोयल इंस्टीट्यूट के IASDG और हुकूमत के EOSP LCSK ने डॉक्टर PK मलिक, डायरेक्टर प्राइवेट लोकसभा सेक्रेटरिएट को एक यादगार भी पेश किया है। लोकसभा सेक्रेटरिएट के लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स इंस्टीट्यूट के IASDG डॉक्टर शशांक गोयल और TS हुकूमत के EOSP LCS के साथ नजर आए। रियासती हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक्किद होने वाली रियासती ख्वातीन कॉन्फ्रेंस के इंतजामात का जायजा लिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर रियासती सेक्रेटरिएट में मुनक्किदा मीटिंग में CS ने कहा है कि चूंकि इस ख्वातीन कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 1 लाख खुद मदद ख्वातीन मेंबरान हिस्सा ले रही हैं, उन्हें मुनासिब इंतजामात करने की हिदायत दी गई ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा है कि कॉन्फ्रेंस के अहाते में मुनासिब नशस्तें हैं, पीने का पानी, मोबाइल, बैतुल खला और दीगर बुनियादी ढांचा फराहम किया जाए। उन्होंने हिदायत की है कि मुतल्लिका अजला से आने वाली बसों के लिए अहाते के करीब पार्किंग की सहूलत भी फराहम की जाए और ऐसे इक़दाम किए जाएं कि वो दरवाजे पर साइन बोर्ड लगाकर अहाते में उनके लिए तैयार करदा नशस्तों तक पहुंच सके। रियासती हुकूमत शहर में सेवरेज के निजाम को मजीद मजबूत बनाने के लिए सख्त इक़दाम कर रही। रोजाना पैदा होने वाले सेवरेज की 100% ट्रीटमेंट के काबिल बनाने के लिए STPs का मंसूबा शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर 1259.50 MLD की सलाहियत के साथ 31 नए सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स STP3 पैकेजों में कुल 3866.41 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए हैं। इनकी तामीर की जिम्मेदारी वाटर बोर्ड पर डाल दी गई है, जबकि ये कुल 5 सर्कल्स में तामीर हो रहे नए STPs को जदीद सीक्वेंसिंग बेच रिएक्टर टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा। अगर इनको मुकम्मल करके दस्तयाब कराया जाता है, हैदराबाद जनूबी एशिया में तारीख रकम करेगा। सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड, जो कि एशिया की सबसे बड़ी वेस्ट मैनेजमेंट फर्मों में से एक है, उसने हैदराबाद के TSIC पुष्मा मेलराम सनती पार्क में अपने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह किया है ताकि फार्मा बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को गंदे पानी की सफाई की खिदमत फराहम की जा सके। पौधे और ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड और पुष्मा मेलारम कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान ताउन है। वजीर बराए IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सनत व तिजारत और कानून साजी उमूर हुकूमत तेलंगाना दोडेला श्रीधर बाबू ने इस सहूलत का इफ्तिताह किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने राष्ट्र समिति इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है। इस कमेटी में CPI के रियासती सेक्रेटरी जनरल G ओबोलेसो कन्वेनर के तौर पर हैं। कमेटी के अरकान में साबिक MLC रियासती सेक्रेटरी के अरकान जली विल्सन, KVV प्रसाद, पार्टी के पेनुमात्सा, दुर्गा भवानी और N लेन्नन बाबू को रियासती इंतजामी कमेटी के अरकान के तौर पर ऐलान किया गया। कमेटी में CPI का इंतखाबी मंशूर तैयार कर रही, जिसका उन्वान अवाम के लिए है, और CPI की इंतखाबी मंशूर कमेटी की मीटिंग दासरी भवन विजयवाड़ा में मुनक्किद की गई। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।